Hello, welcome to CSC Paris Academy. This side your Apurva sir. Let's start with our newspaper analysis. So आज का डेट है 22 जुलाई 2025. ओके सो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. Before starting with the analysis, let me tell you and announce on the behalf of CSC Paris Academy that we have launched two very special and unique batches for all the aspirants of Assam. That is the care batch. This care batch is meant for the students who have cleared your prelims recently और आपको मेंस में अगर पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद फैकल्टीज़ आपको आंसर रियल टाइम फ्रेम में करके देंगे, जहां आपको प्रॉपर 75 डेज़ का, प्लीज़ नोट 75 डेज़ का प्रॉपर टाइम टेबल विल बी गिवन टू यू एंड विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड every day there will be a meeting and discussion of that particular answer. Saturday there will be a follow-up call, then every Saturday you will be having a test. Also for those who have not cleared your prelims, आपको भी मेंस एक्सपीरियंस करवाने के लिए है द 0th अटेम्प्ट बैच, जहां पर आपको वैसा ही मेंटरिंग आपको 75 डेज़ का मिलेगा एंड यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ मेंस एग्जामिनेशन हैपन्स, कि आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जब मेंस लिखते हो को वो जो पेन है वो एक्सपीरियंस आपको आपके 0th अटेम्प्ट में करवाया जाएगा. यू शैल नॉट टू wait to take the experience of mains after a year, rather after 75 days you can take the experience of mains with the CSP Paris Academy. Okay, without any delay, let's see what are the topics that today we'll be discussing. We will be discussing today in about a disease known as leptospirosis disease, which is emerging as a health threat in the region, in our northeast region. Then education becoming expensive in India. There was an article there in Assam Tribune. We will be discussing upon that कि उसके क्या क्या consequences हो रहे हैं. Then what is the legal status of right to vote based on an article of The Hindu. And next one is what have courts ruled with respect to AI and copyright. And last about the Nisar, the first joint satellite of NASA and ISRO. The first news is about leptospirosis emerging as a health threat in the region. तो न्यूज़ है असम ट्रिब्यून में, देखिए मल्टीपल डेथ्स इन द स्टेट लिंक टू अंडर डायग्नोस्ड जूनोटिक डिजीज. Alright, so before starting with what is this leptospirosis, let's see what could be a possible question here. Discuss the importance of one health approach in tackling zoonotic diseases in the context of recent outbreaks in Northeast India. तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप यहाँ पर लेप्टोस्पाइरोसिस का एग्जांपल दे सकते हैं. इस न्यूज़ को आप कोट कर सकते हैं. अगर आप ऐसे न्यूज़ को अपने आंसर राइटिंग में कोट करते हो तो देयर विल बी अ वेरी हाई चांस दैट यू कैन राइट you will gain more marks. Okay, now what is this leptospirosis? So leptospirosis, it is a zoonotic disease. Zoonotic disease. Now what do we mean by this zoonotic disease? Zoonotic disease, it is the disease which spreads from animal to human. Okay, इसका जो causative agent है, जो microbe है, उसका नाम है leptospira, and it is transmitted through contaminated water, food or soil, especially in flood prone and livestock dense areas. जहाँ पर livestock cattle dense areas है, उन सब जगह से ये लेप्टोस्पाइरोसिस स्प्रेड होता है. उसके सिम्टोम क्या है? सिम्टोम हो सकता है बुखार, सिर दर्द, मसल एक, बॉडी पेन आपका हो सकता है. देन अगर थोड़े से सीवियर में जाए तो जॉन्डिस और वॉमिटिंग कैन आल्सो टेक प्लेस. और बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर हो तो कुछ डिजीज़ जैसे कि विल्स डिजीज़ भी फॉर्म हो सकता है फ्रॉम लेप्टोस्पाइरोसिस. विल्स डिजीज़ का जो स्पेसिफिक सिम्टोम है दैट इज़ द लीवर डिस्फंक्शन, दैट इज विच विल लीड टू लीवर फेलियर, ऑल्सो किडनी फेलियर एंड pulmonary hemorrhage. Pulmonary hemorrhage, it is the bursting of the blood vessels into your lungs, and ultimately multi-organ failure which may lead to death. But इसका जो mortality rate है ये
थोड़े सीवियर केसेस में थोड़े ज़्यादा है, जैसे 10 to 20%। मॉडरेट या फिर माइल्ड केसेस में मोर्टेलिटी रेट एज सच नहीं है। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर डायग्नोसिस अर्ली हुआ तो। जैसे कि फर्स्ट लाइन या फिर सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसे बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर सेफ्ट्रिक्सोन, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज prophylaxis is also possible. Let's see what do we mean by prophylaxis. Prophylaxis का मतलब है it is the treatment given to a disease. ठीक है, तो prophylaxis is possible, that means treatment is possible. Now let's see about the recent outbreaks, that is in Goalpara district 11 confirmed deaths from leptospirosis happened. In Sikkim in 2024, the first lab confirmed fatal case of Leptospira wolfi. ठीक है, ये भी एक क्लास है डिजीज का, with suspected link to similar strains in Bangladesh and Bhutan raises cross border zoonotic risk. तो यहाँ पर देखिए क्रॉस बॉर्डर का zoonotic risk हो रहा है, that may be of by the transfers of लाइफ स्टॉक्स और कैटल्स, कि उनके हेल्थ को अच्छे से चेक नहीं किया जाता है। वो जो ट्रांसफर्स होते हैं लाइफ स्टॉक्स के, वहाँ से ह्यूमन के बीच स्प्रेड होता है, एंड इट शोज सिम्टम्स वेरी स्लोली एंड हेंस इट रिमेन्स अंडर डायग्नोस्ड विच इवेंचुअली लीड टू डेथ। कुछ एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक रिस्क फैक्टर्स भी एसोसिएटेड है फ्रॉम द डिसीज, दैट इज फ्रॉम अनकवर्ड वाटर सोर्सेस, कि यहाँ पर हमने देखा है ना ऊपर जेट इट इज स्प्रेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और सॉइल। तो वैसे ही अगर अनकवर्ड वाटर सोर्सेस हैं, क्लोज ह्यूमन लाइफ स्टॉक इंटरेक्शन है, frequent flooding, lack of public awareness and inadequate diagnostic infrastructure which lead to this spread of this particular disease. Okay, let's discuss about the issues and challenges first. डिस्कशन थोड़े एलाबोरेटली करेंगे बिकॉज एज यू नो दैट हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेन सेंट्रिक है। तो इफ़ यू गो फॉर डिस्कसिंग the issues and challenges of it. Issues and challenges. So the first issue is the underdiagnosis or underreporting. Underreporting by non-specific symptoms, because जो symptoms है ना वो अलग अलग डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ के सिम्टम्स को वो मिमिक करता है। जैसे कि डेंगू हो, हेपेटाइटिस हो, उन सब डिजीज़ों का जो सिम्टम है, लेप्टोस्पायरोसिस का भी वैसे ही सिम्टम है। सो उसको कंफ्यूज किया जा रहा है विद दैट। नेक्स्ट, लेप्टोस्पायरोसिस का जो टेस्ट है, डायग्नोसिस है, दैट इज हैज़ लिमिटेड टेस्टिंग कैपेसिटी स्पेशली इन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन अमंग जनरल प्रैक्टिशनर्स, की क्लिनिकल सस्पिशन जो लेप्टोस्पायरोसिस शायद उसको सस्पेक्ट करना में ही चैलेंज है, क्या वो डॉक्टर्स ही उसको सस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। देन लाइक कुछ स्ट्रेन्स है, इफ़ यू से अबाउट द इमर्जिंग स्ट्रेन इन इंडिया, ये लेप्टोस्पायरोसिस का जो स्ट्रेन है, नया सा स्ट्रेन दैट इज फर्स्ट टाइम कंफर्म्ड इन ह्यूमन इन्फेक्शंस इन इंडिया। ये इंडिया में पहली बार ये लेप्टोस्पायरोसिस का स्ट्रेन को, वोल्फी को, यहाँ पर फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया। क्या है नेम ऑफ द स्ट्रेन? इट इज़ द लेप्टोस्पाइरा वोल्फी, which may have different virulence or clinical feature and which may be challenging for the existing diagnostic paradigm, कि जो नया स्ट्रेन है उसको डायग्नोसिस करने में ही एक चैलेंज है। देन पोर सर्विलियंस, ये कुछ ट्रेडिशनल्स जो भी लैक एंड चैलेंजेस में रहते हैं, पोर सर्विलियंस या फिर कोऑर्डिनेशन, रूटीन डिजीज सर्विलेंस कम करना, इनएडिक्वेट इंटीग्रेशन
बिटवीन द वेटरनरी एंड द ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम, की वेटरनरी हेल्थ केयर को अलग रखा जाता है, ह्यूमन हेल्थ केयर को अलग रखा गया है, तो उसमें भी हमें इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इस टाइप के चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं. और ऑल्सो दिस इज अनदर चैलेंज अबाउट द ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी. Geographical vulnerability, especially of the northeast region, because climate change, deforestation, high rainfall in the northeast region, which makes the region itself vulnerable to such disease. All right. तो इस तरह की जूनोटिक डिजीज इट इज ऑल्सो अ वेरी ग्लोबल हेल्थ बर्डन कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट एस्टिमेट्स every year over 1 million cases and 60,000 deaths globally per year from leptospirosis. So ये WHO ये भी कहता है कि जो leptospirosis है it has a high epidemic potential. epidemic का मतलब क्या है? महामारी. It has high epidemic potential. आप मुझे कमेंट में बताइए कि epidemic और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है? What are the difference between epidemic and pandemic? Please do write in the comment section. Okay, we will now discuss about the next news, that is education becoming expensive in India. This is also based on an article of the Assam Tribune. Before proceeding with the analysis, let's see what is the question over here. The question is, the rising cost of education in India is turning a fundamental right into a market commodity. मतलब जो हम एजुकेशन इतना कॉस्टली होता जा रहा है इन इंडिया, इट इज़ टर्निंग एज अ फंडामेंटल राइट इनटू मार्केट कमोडिटी, कि मार्केट में एक कमोडिटी को तरह एजुकेशन को बेचा जा रहा है एट अ वेरी हाई कॉस्ट बेस्ड ऑन डिमांड. Critically examine the implications and suggest policy measures to ensure equitable access to quality education. Okay. So before that, if we talk about education, कुछ constitutional या फिर policy framework अगर देखते हैं तो जैसे कि Article 21A, which gives right to free and compulsory education for children aged between 6 and 14, which make right to education a fundamental right. Also, DPSP may be by Article 45 and 46, which direct the state to promote education and economic interest of weaker sections. Also, the National Education Policy 2020, which aims at universalization of education and promoting equity and affordability. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, DPSP है या और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, विच इज प्रमोटिंग एजुकेशन फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल. बट देयर आर सर्टेन रीजन्स वेयर the cost is rising to a sky high, and the reasons are, number one, privatization of education. हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो रोल है वो ज़्यादातर निभाया जा रहा है बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि उनका जो प्राइमरी मोटिव है दैट विल बी द प्रॉफिट मोटिव देन वेलफेयर मोटिव. सो ड्यू टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डिक्लाइन है, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आर एट अ डिक्लाइन. तो इसकी वजह से इट लीड टू एजुकेशन टू बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट प्लेयर्स. ऑल्सो देर इज़ नो फी स्ट्रक्चर्स रेगुलेशन. फी स्ट्रक्चर का कोई भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है. कुछ एक दो स्टेट्स में रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, बट नेशन वाइड कोई भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी लॉज नहीं है, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट अगर देखते हैं, दिन ब दिन एजुकेशन भी मॉडर्न होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. लाइक फ्रॉम ब्लैक बोर्ड वी हैव शिफ्टेड
to teaching to a smart board, digital board, which requires more financial resources, right? Modern facilities like smart classrooms हम कहते हैं उनको, smart classrooms, use of digital platforms which makes education costly nowadays. कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दोनों को ही इंक्रीज करते हैं. थर्डली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कि जैसे कि लोगों के सैलरी बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के दाम बढ़ जाना और अदर इनपुट्स के दाम बढ़ना, इट लेड टू अगेन हाई कॉस्ट फॉर एजुकेशन. ऑल्सो very important role here is by the limited seats in public institutions. चाहे आप IIT बोलिए, आप IIM बोलिए, ठीक है, या फिर मेडिकल कॉलेजेस बोलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो आपको सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे. तो अगेन द स्टूडेंट्स गेट रिलाइड ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हु चार्जेस hefty. Then there's a non-tuition component like cost of transportation के बढ़ जाना, uniforms, books या फिर co-curricular activities which ultimately led to the burden of high cost. Ultimately कुछ consequences भी यहाँ पर arise होंगे, जैसे कि social inequality, मतलब अभी जो class difference है, अगर हम low या फिर middle income families को लेते हैं, they are disproportionately affected, कि they cannot bear the cost of the very costly institutions. अगर किसी को IIT में सीट नहीं मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रहा है, तो अगर प्राइवेट में उनको जाना होगा, वो लाख रुपया वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे. That leads to a inequality. So education which should be a social leveler, it now becomes a tool of exclusion. कि अगर कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, अगर उसको डॉक्टर बनना है, उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला है चंद मार्क्स के वजह से, तो वो अपना सपना वही खो देता है. बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत ही ज़्यादा, उनका जो गैप है दैट इज़ वेरी ह्यूज. अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 लाख लगता है कोर्स करने में, तो प्राइवेट कॉलेज में वो 50 लाख तक जाता है. So that difference cannot be met by a low or middle income family. Next, economic burden on families. Parents are resorting to loans, assets, sales और early savings. तो economic burden parents के ऊपर है. लोन लेके पढ़ाया जा रहा है, assets बेच के पढ़ाया जा रहा है, समय से बहुत ज़्यादा पहले ही सेविंग्स कर रहे कि बच्चा अभी भी शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा, या फिर बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, वो क्या उसका क्या एस्पिरेशंस है वो अभी भी ठीक ही नहीं है, बट पेरेंट्स स्टार्ट सेविंग फॉर देम, which again creates a very huge burden. And this kind of things lead to education disparity among region also, which stops the access to global standard education, which remains limited to elite. कि बाहर जाके, अमेरिका जाके, लंदन जाके किसी को पढ़ना है, वो elite matter में ही अभी भी सीमित है. Okay, anyways, let's start with the next topic, that is what is legal status of right to vote. मतलब ये जो न्यूज़ है ना, बिहार में जो इलेक्शंस होने वाले, उसमें जो SIR चल रहा है, तो उसको लेकर ही न्यूज़ है. सो व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट. तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं, क्या वोट देना क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या स्टैट्यूटरी राइट है, ये कैसा राइट है, नेचुरल राइट है, तो वो है अबाउट दैट आर्टिकल. ठीक है. सो यहाँ पर क्वेश्चन भी वैसा ही है कि द राइट टू वोट थ्रू सेंट्रल टू इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क कंटिन्यूज टू बी ट्रीटेड एज अ स्टैट्यूटरी राइट rather than a constitutional or a fundamental one. Critically examine the legal status of the right to vote in India. Should it be elevated to a constitutional right? मतलब right to vote है वो जो है वो fundamental right में नहीं है. क्या should it be elevated to a constitutional right? That is all about that article. Now let's understand about the different rights in India's jurisprudence. Jurisprudence का मतलब है law. Judiciary. It is jurisprudence. तो फर्स्ट वन इज नेचुरल राइट. नेचुरल राइट क्या है? नेचुरल राइट इट इज द इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स. इट इज इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड इट इज नॉट explicitly enforceable
अनलेस एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड अंडर फंडामेंटल राइट, उसको एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर फंडामेंटल राइट। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर उनको उसको एनफोर्स किया गया है एक्सप्लिसिटली और उसको एक्सरसाइज करवाना ही है। देन आता है फंडामेंटल राइट दैट इज अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन डायरेक्टली एनफोर्सेबल अंडर 32 इन द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको एनफोर्स किया जा सकता है, बट नेचुरल राइट जो है उसको एनफोर्स आप किए नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड पार्ट 3। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, ये आउटसाइड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे कि इट इज़ एनफोर्सेबल अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट, जैसे कि राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी which is not a fundamental right. Next comes your statutory rights, those rights which are backed by the statute of the law, which is created and governed by laws passed by the parliament or the state legislatures, and also which are subject to legislative changes, कि जो parliament हो या फिर state legislature हो वो अपने मर्जी से उन right को cater भी कर सकते हैं। जैसे कि right to vote under representation of the People's Act, right to work under मनरेगा, right to food under NFSA, these are the statutory rights। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क हमने कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट why should be voting be a constitutional right? What are the what did he say about it? And we will also see the criticism as well, counter arguments. These are the arguments, and next we will see the counter arguments. Now, why should be voting a constitutional right? The first argument is democracy and basic structure, because free and fair elections are intrinsic to the basic structure। कि जो basic structure of the constitution है दैट इज उसका जो एक इनहेरेंट पार्ट है दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर ना होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो दैट माइट बी उल्लंघन, क्योंकि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला गया है। सो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंडिया को रिपब्लिक बोला गया है, दैट कम्स फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। Voting can be seen as an aspect of freedom of expression by Article 19, Clause 1, Subclause E. Next, reduce vulnerability to legislative amendment, कि ये constitutional right वो ज़्यादा secure, more secure वो है against the arbitrary changes than a statutory one। कि constitutional right का दर्जा अगर उस right को मिलता है वो arbitrarily change किया नहीं जा सकता by the legislatures। ऑल्सो ग्लोबल नॉर्म्स अगर देखते ज़्यादातर लिबरल कंट्रीज़ वो राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा ही दिया है, और कुछ कंट्रीज़ हमें देखने को मिलता है दे हैव ऑलरेडी गिवन राइट टू वोट एज अ फंडामेंटल राइट। बट इसमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है, जैसे कि पार्लियामेंट शैल रिटेन द पावर टू रेगुलेट वोटिंग, कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर होना चाहिए वोटिंग को रेगुलेट करने का, कि देयर मस्ट बी अ लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। There must be a legislative supremacy that parliament should retain the power to regulate voting through statute, मतलब law, or to maintain electoral integrity। और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐसा हो सकता है दैट आर्टिकल 326 जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू लॉज। ठीक है, तो ये लॉजिकली एक स्टैट्यूटरी राइट भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी कुछ की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस
जैसे कि एनपी पुन्नुस्वामी 1952 का जो केस है, वहाँ पर बोला गया राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है। ज्योति बासु केस में 82 में वहाँ पर ऑब्जर्वेशन था कि वोट राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल और अ कॉमन लॉ राइट, ओनली स्टैट्यूटरी। पीयूसीएल केस में बोला गया बाय जस्टिस पीवी रेड्डी, वोटिंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो नॉट फंडामेंटल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है पर वो फंडामेंटल नहीं है। कुलदीप नायर केस में बोला गया है रिटेरेटेड राइट टू वोट इज स्टैट्यूटरी। राजबाला केस में बोला गया है डिवीजन बेंच टर्म्ड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अनूप बरनवाल में मेजॉरिटी हेल्ड इट एज अ स्टैट्यूटरी राइट। जस्टिस अजय रस्तोगी लिंक्ड वोटिंग टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट बोला जा रहा है। फाइन, तो ज़्यादातर आप देखोगे कि राइट टू वोट जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेज में रखा गया है, पर कुछ कुछ केसेस में हमें फंडामेंटल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट व्हाट हैव कोर्ट्स रूल्ड विथ रेस्पेक्ट टू एआई एंड कॉपीराइट। ओके, लेट्स सी नाउ। जैसे कि आप लोग जानते हैं अबाउट द जनरेटिव एआई, हम देखेंगे कि ये जनरेटिव एआई क्या है। देन ChatGPT, DALL-E, क्लॉड, ये कुछ एआई है हम अपने डे टू डे टास्क में यूज़ कर रहे हैं। उसके बहुत सी इम्प्लीकेशंस हैं। हम सिर्फ आज ये जो न्यूज़ है कोर्ट ने क्या बोला है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके हम कुछ देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ये जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई ये कुछ मॉडल्स है which generate contents. Contents may be in the form of text, contents may be in the form of images, contents may be the form of music also, and also content on the content for codes also. Okay, based on the pattern learned from existing data set. तो जो generative AI है जैसे कि ChatGPT एक generative AI है, तो वो उसको डेवलप किया गया है बाय द एग्जिस्टिंग डेटा से। जितने भी इंफॉर्मेशंस है ओवर द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट, तो उन सब डेटा सेट से वो आपके प्रॉम्प्ट से, जब हम कमांड देते हैं उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट, तो आपके प्रॉम्प्ट से वो आपको जो चाहिए वैसा आपको जनरेट करके देता है। तो दैट इज़ जनरेटिव एआई। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैन एआई बी ट्रेन्ड ऑन कॉपीराइटेड कंटेंट। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर एआई का या फिर जनरेटिव एआई के फेयर यूज़ को हमें देखना होगा। हम नहीं कह रहे कि एआई इज़ समथिंग बैड, बट एआई को अगर आप एब्यूज़ कर रहे हो, जैसे कि रिसेंटली असम में केस एक हो चुका है, ठीक है, कि बाय क्रिएटिंग डीप फेक्स, वो भी एआई जनरेटिव टूल से ही निकला है, वो एब्यूज़ है। पर अगर यहाँ पर एक फेयर यूज़ हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो फेयर यूज़ क्या है? फेयर यूज़ का मतलब है इट इज़ अ लिमिटेड यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन। जैसे कि क्रिटिसिज्म हो, कमेंट करना हो, न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, एडुकेशन हो, रिसर्च हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, बट फॉर फेयर यूज़ विदाउट परमिशन। यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि, और ये जो है ये दीज आर सम लीगल क्वेश्चंस दैट वी विल बी रेजिंग नाउ। Can AI be trained on copyrighted content? So courts have tentatively allowed AI training on copyrighted material if the use is transformative and does not replace the market for the original. मतलब जिस copyrighted चीज़ को AI यूज़ कर रहा है, अगर वो मार्केट में उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है या फिर उस चीज़ को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है एंड इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग, तब उसको यूज़ किया जा सकता है और उसको फेयर यूज़ में माना गया है। बट पायरेटेड कंटेंट इज़ क्लियरली आउटसाइड द रियाम ऑफ लीगल यूसेज। पर कोई भी अगर पायरेटेड कंटेंट है तो वो लीगल यूसेज के बाहर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू एआई इन आउटपुट्स इन्फ्रिंज कॉपीराइट। कि जो एआई जनरेटेड आउटपुट है, जैसे कि घिबली इमेज का ट्रेंड आया था ना, घिबली इमेज, तो घिबली जो है वो जापान के एक आर्टिस्ट है, उनका नाम क्या था, हायो मियाजाकी। तो ChatGPT हो या फिर अदर कोई जनरेटिव टूल हो, तो वो घिबली इमेज को हमें दे रहा था। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है क्या
ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा कि इफ़ AI आउटपुट्स आर सब्सटेंशियली सिमिलर टू कॉपीराइटेड वर्क्स लाइक द गिबली इमेज दे में कंस्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट। हाँ, उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जा सकता है। बट इफ आउटपुट्स आर ट्रांसफॉर्मेटिव एंड डू नॉट अफेक्ट द मार्केट फॉर द ओरिजिनल दे में फॉल अंडर फेयर यूज। पर अगर जो यहाँ पर जनरेट करके दिया गया है अगर वो इन्फ्रिंज या फिर मार्केट में उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसका इंपॉर्टेंस अभी भी मार्केट में वैसा ही है, तब उसको फेयर यूज़ माना जाएगा। नाउ अभी ये AI जनरेटेड कंटेंट जो है उसका ओनरशिप कौन लेगा? हु इज़ द ओनर ऑफ द कंटेंट? सो मोस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ग्लोबली एज्यूम ह्यूमन ऑथरशिप। तो कोई भी अगर कंटेंट है उसका ह्यूमन ऑथरशिप होता है, पर AI जनरेटेड वर्क जो है वे ऑफन फेल टू अ ग्रे एरिया विद अनसर्टेन ऑथरशिप एंड ओनरशिप राइट। जो बनाया गया है बाय द AI प्रॉम्प्ट, ना ही वो किसी इंसान के ओनरशिप में होगा, ना ही कोई वो अथॉरिटी के ओनरशिप में होगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर। ऑलराइट, तो ऐसे यूएस में बहुत से केसेस है, उस केस में रूलिंग भी आया है, जैसे कि है द एंथ्रोपिक केस ऑफ 2025। जज विलियम एल्सप ने बोला है कि AI ट्रेनिंग इज एनालॉगस टू ह्यूमन लर्निंग एंड क्वालिफाइज एज ट्रांसफॉर्मेटिव यूज। इज एनालॉगस टू ह्यूमन लर्निंग मतलब ह्यूमन लर्निंग का ही एक पार्ट है, एंड वो क्वालिफाई करता है फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव यूज। बट पायरेटेड कॉपी यूज़ करना ये लीगली स्क्रूटिनाइज एंड इट विल गो अंडर ट्रायल। तो मेटा का भी केस चला, मेटा का भी केस है 2025 में। तो वहाँ जज विंस शैब्रिया ने बोला है कि प्लेंटिफ जो मेटा था फेल टू शो मार्केट हार्म फ्रॉम मेटाज AI आउटपुट। जो प्लेंटिफ है, जो जिसने केस किया है, उन्होंने AI मेटा के AI आउटपुट से मार्केट में उनके प्रोडक्ट को हार्म पहुंचा है, उसको उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए उनको इकोनॉमिक फेयरनेस जज ने एम्फेसाइज किया है, इट इज़ इकोनॉमिक फेयरनेस वो, और सजेस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग विद कॉपीराइट होल्डर्स। तो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए मेटा को बोल दिया गया। सो ऐसे कुछ केसेस हैं दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो इंडिया में क्या लीगल प्रोविजंस है कॉपीराइट को लेकर, दैट इज़ द कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि सेक्शन 52 वो कहता है कि देयर इज़ अ फेयर डीलिंग बट डज नॉट एक्सप्लिसिटली कवर AI। कॉपीराइट एक्ट में 52 जो है सेक्शन 52 वो फेयर डीलिंग कहता है, पर AI का कोई भी मेंशन अभी तक नहीं है। सो इवेंचुअली मे बी इट विल रिक्वायर सर्टेन अमेंडमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, सो नॉट ओनली इंडिया, पूरे इन वर्ल्ड में ही AI रेगुलेशन को लेके बातचीत हो रहा है। तो आई होप कि आने वाले सालों में AI को लेकर भी रेगुलेशंस आएंगे। इन द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे दैट इज निसार, फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो। लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इज द फर्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा, जो कि 30 जुलाई आने वाले 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यूजिंग द GSLV F-16 रॉकेट, जिसके एप्लीकेशंस की होंगे, कहाँ होंगे? एनवायरमेंटल और क्लाइमेट मॉनिटरिंग में, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैरीटाइम सर्विलेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी में। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द US इंडिया स्पेस कोऑपरेशन। तो ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में भी नहीं, ये इंडिया US रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स वी आर एट द एंड। अगर आपको मेंस में पुश चाहिए, इफ़ यू रिक्वायर मेंस ओरिएंटेड क्लासेस फ्रॉम अस, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, वी आर हियर विद अ comprehensive mains crash course for the students who will be appearing on October 11, 12 and 13. These are the dates that has been released by APSC. Classes are starting, एक बैच हमारा चल रहा है और एक बैच 25 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सो उसके लिए आप हमारे साथ एडमिशन्स ले सकते हैं। सो बिफोर लिविंग आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक if you really liked my analysis, and don't forget to subscribe to CACPIS Academy YouTube channel. So thank you so much students.